ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگوں نے پچھلے کچھ ہفتوں سے کافی زیادہ دفعہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کسی کو بلائیں تو آپ لوگ کچھ کہیں اور ہم نہ مانیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کسی ایسے بندے کو بلائیں جس کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہوں اس فیلڈ کے حوالے سے, اور تاکہ آپ کو صرف بکسے میں چیزیں پیک کرنی ہو اور آپ بکسا اٹھائیں اور باہر کی طرف نکل جائیں, جنہوں نے جانا ہے. ویسے ارم جب وہاں سے یہاں تک آ رہی تھی تو میرے خیال سے ہمارے اسٹوڈیو کے آدھی سے زیادہ عوام نے یہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دے جس سے ہم ساتھ چلے جائیں. اور ایک تو انہوں نے جو میں بتاتا ہوں بڑے مزے کی بات, انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں جو ایک لائن لکھی ہے نا, وہ لائن اتنی خوبصورت ہے. اگر شاعر اس پہ زور کرے, اگر شاعر اس پہ زور کرے, فری لیٹس گو ٹو فری, جب پاکستانی عوام سن لے تو وہاں پہ آپ کو, آپ یقین مانیں زہر بھی فری ملے. ہماری اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, کہتے جی کیا زہر. اچھا واقعی بہت سارے ممالک باہر ایسے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن فری ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فری نہیں ہوتی. تو اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سوچنا سمجھنا پڑے گا. لیکن ایجوکیشن واقعی جس ممالک کے بارے میں بتاتی ہے وہاں پہ فری ہوتی ہے. حلیمہ ایک بات کہوں, جی بتائیں. چاہے فری ہو جو بھی ہو, آپ میری بات سے اگری کریں گی. پہلی بار سنجیدہ بات میں کرنے لگا ہوں, یہ سودا بہت مہنگا ہے, یہ بڑا مہنگا سودا ہے. کیونکہ یقین مانے چاہے اکنامک کنڈیشن الحمدللہ اب تو بہتر ہو رہی ہے, پر انشاءاللہ ہوگی, آپ فکر نہ کریں. جیسی بھی اکنامک کنڈیشن ہو, اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. چاہے آپ جتنا رول رہے ہو, آپ کو جو سانس کی خوشبو, جو مٹی کی خوشبو, جو اپنے ماں باپ کی وہ جو پریزنس ہے, اس سے جو پیار اور محبت ملتا ہے, آپ چاہے میں کہتا ہوں دنیا کے بڑے سے بڑے ملک چلے جائیں جہاں کوالٹی آف لائف نمبر 1 ہے. میں نے ان سے بھی فونوں پہ بات کی اور مجھے کہتے ہیں یار ملک بڑا ہے. لٹرلی واقعی صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت یاد آتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کی جو فیملی ہوتی ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہر ٹائم پہ موجود ہوتی ہے. وہاں جب آپ جاتے ہو تو آپ تنے تنہا ہو, ہر چیز سے, ہر ڈیفیکلٹی سے آپ نے اکیلے لڑنا ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ بھی ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ اتنی تعداد میں انجینئرنگ کر کے ماشاء اللہ سے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں کہ پھر ان کو کہیں نوکری نہیں ملتی, اور انفارچونیٹلی ان کو باہر جانا پڑتا ہے کہ یا تو وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے وہیں پہ سیٹل ہو جائیں, یا پھر وہ واپس آئیں تاکہ ان کے پاس ایک ایسی سالڈ ڈگری ہو کہ وہ یہاں والے بندے سے تھوڑا بہتر ہوں, اس لیے ان کو جاب مل جائے. حلیمہ, I think there is no harm کہ اگر آپ باہر جا کے فردر اسٹڈیز کر کے واپس آئیں اور اپنی ایکسپرٹیز یہاں پر جائیں. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں, آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے. یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے تو ویسے کافی باتیں کر لی آپ لوگوں کے ساتھ دل کی. اب ہم چلتے ہیں ہماری گیسٹ کی طرف جن کی ایکسپرٹیز ہے, ان میں کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ارم خان. السلام علیکم ارم, ہاؤ آر یو؟ I'm fine. Thank you so much for calling me. ارم, سب سے پہلا سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے. جی بالکل. کیسا لگ رہا ہے لیٹ کر دیکھتے ہوئے ہمارا شو اور آج وہاں پر بیٹھ کے؟ How does it feel? کیسا لگ رہا ہے؟ So feeling so good. لائیولی ہے, لائیو ہوں میں آج, پوری فیملی دیکھ رہی ہوگی. انفیکٹ جرمنی میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, میں نے سب کو لنکس بھیج دیے ہیں سارے. تو آج آپ کا جرمنی میں بھی شو ہو رہا ہے, دیکھا ہے سب جرمنی کے جتنے لوگ ہیں, اگر وہاں پہ مجھے سنا وہاں بڑی اچھی شرٹیں ملتی ہیں, تو بھائی ہیلو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں شرٹیں ملتی ہیں, تو اگر آپ لوگ اگر کوئی اچھی سی شرٹ ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے بہت اچھے ملتے ہیں. میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کروں گی, جو پاکستان کا برانڈ ہے اور پاکستان کا جو کاٹن ہے یا کپڑا ہے, جینس ہے, وہاں میں نے برلن میں, فرینکفرٹ میں, میونک میں خود دیکھا میڈ ان پاکستان. اور جو ایکسپورٹ, یس ایکسپورٹ جو کوالٹی, آئی ویئرنگ دس آل آف دا پاکستان آؤٹ فٹ. اور میں جب یہ پہن کے گئی ہوں تو یوں پکڑ کے دیکھتے تھے یہ کہاں کا ہے, یہ کون سا ہے, یہ کون سا مٹیریل ہے. تو میڈ ان پاکستان از سو گڈ. ایکسپورٹ کوالٹی آپ کو امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان کیا دیتا ہے. انفارچونیٹلی ارم وہی مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ ایکسپورٹ کوالٹی جو وہاں پہ جاتی ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوتی, تو ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. ہم جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے تو ہم حیران ہو رہے تھے کہ دس از میڈ ان پاکستان. پاکستان میں یہ کہاں تھا, ہم کہاں رہ رہے تھے جو ہمیں یہ نہیں ملا. تو وہ ساری چیزیں جو پاکستان کی کریم چیزیں ہوتی ہیں وہ obviously ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو پراؤڈنیس تو وہی ہوتی نا جا کے باہر جا کے, جب آپ شاپ میں کھڑے ہو تو میڈ ان پاکستان نظر ہے جو پراؤڈ ہے. It is very important at this point of time, کیونکہ ابھی وہ اکنامیکل کنڈیشن ہم نے دیکھا بہت بڑی پرسنٹیج آف ینگسٹر جو ہیں پاکستان سے باہر چلے گئے. It's a good point as well and it's sad at the same time.
गुड इस तरह है कि यकीनन जो लोग बाहर जा रहे हैं वो वहाँ से ज़र मुबादला भी यहाँ पर भेजेंगे, जब वहाँ पे कमाएंगे, एंड नॉट जस्ट दैट, वहाँ से पढ़ कर आएंगे, कुछ वापस भी आएंगे जहाँ पे एक्सपर्टीज यहाँ पर अपनी दिखाएंगे। लेकिन बाहर जाना कितना अच्छा है कितना सही नहीं, इस बहस में मेरा नहीं ख्याल हम पढ़ेंगे। हम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को दिखा रहे हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ तालीम करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। तो जर्मनी आपकी एक्सपर्टीज है, पहली बात तो ये। तो मुझे बताएं, जर्मनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मसला आता है वो होता है लैंग्वेज का। वहां पर अब मैंने सुना है, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है टीडो, बड़ा मुश्किल नाम था, बड़ा सोचना पड़ा, तो टीडो ने मुझे ये बताया कि अब जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा, अब वो इंग्लिश में भी कोर्सेज बहुत सारे करवा रहे हैं। लेकिन फिर मसला आ जाता है जब जॉब करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं जर्मन में बात करें आप हमसे। तो ये जो मिथ है ये सारी पहले ये क्लियर करें, फिर हम एजुकेशन की तरफ आएंगे। चले मैं थोड़ा सा जर्मन में ही शुरू करती हूँ। गुडन मॉर्गन, ich bin और एक सुबह, meine heiße Ira Mai Khan, ich bin Kussilarian, I'm an artist, ich bin academic counselor, क्योंकि कुछ वर्ड हमें इंग्लिश में भी बोले जाते हैं। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए किया कि आपको समझ आए कि जर्मन इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट, वोकैबुलरी थोड़ी सी होती है मुश्किल, लेकिन लर्निंग इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम अच्छा सा लर्न कर लेते हैं। मेरी बिज़नेस को या मैंने अपना जो काम शुरू किया है सिंस 11 ईयर्स हो गए हैं। इस 11 ईयर्स में मैंने उसी वक्त से स्टार्ट किया जब सर्च किया था। 18,000 कोर्सेज सर्च किए हैं विद इन 300 यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। मैंने सारे ममालिक से ढूंढ के मैंने जर्मनी को चूज़ किया। नंबर 1 फ्री एजुकेशन, नंबर 2 देयर इज़ इंग्लिश मीडियम कोर्सेज ओवर देयर इन मास्टर्स एंड बैचलर्स। तो जब आपको 18,000 कोर्सेज डिस्कवर कर लिया और इतने साल से है लेकिन लोग जा नहीं रहे थे, उसको डिस्कवर नहीं कर रहे थे, तो देयर इज़ नो बैरियर ओवर देयर। आप इंग्लिश मीडियम में आप तालीम ले सकते हैं, आइल्स यानी कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज में करना पड़ता है। यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पता नहीं आइल्स को रॉकेट साइंस समझते क्या समझते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको बैरियर तोड़ना चाहिए कि आइल्स करें। अब रहता है कि आपका जो सवाल था कि जर्मन लैंग्वेज क्या बैरियर करता है, वो लैंग्वेज वाकई बैरियर करता है। हम इस वक्त मकामी ज़बान उर्दू में बात करें, थोड़ी सी इंग्लिश कर ली, थोड़ी सी बायलिंगुअल हो जाते हैं। तो जब हम बायलिंगुअल होते हैं तो वो भी अपनी ज़बान में आपस में बात करते हैं। हम ऑफिस में बैठे हुए आपस में हमने बात करी और एकदम से जर्मन में कोई शुरू हो गया और हमें नहीं पता वो हमारी बुराई करे या अच्छाई करे, क्या करे। तो इस सेंस में मैं कहती हूँ कि आपको जर्मन ज़रूर सीखनी चाहिए ताकि जॉब में हासिल करते हुए आपकी कन्वर्सेशन पावर आपकी अच्छी हो। ठीक है इरम, बहुत सारे लोगों ने, मुझे पर्सनली मैं उन लोगों को जानती हूँ जो यहाँ से जर्मन का कोर्स करके गए, जिस तरह से आप बात कर रही थी, लेकिन लैंग्वेज कोर्स बाकायदा करके गए, उनको यहाँ से सर्टिफिकेशन मिली। उस सर्टिफिकेशन की बेस पे उन लोगों को वहाँ जाकर जॉब्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ और जर्मन सीख के गए थे, वहाँ पे कुछ और बोली जा रही है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। जो जर्मन वो यहाँ से सीख के जाते हैं, वो लफ्ज़ जब वो वहाँ पे जर्मन के सामने बोलते हैं तो वो कहता है पता नहीं पहाड़ी में बात कर रहा है। अगर आप कहें तो इनपुट दूं, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। यहाँ तक अंग्रेजी का भी आप भी जवाब इसका देंगे, अंग्रेजी का भी यही हाल है। जब आप ऑस्ट्रेलिया और मैं जब यूएस गया, व्हेन आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, तो जब मैंने अंग्रेजी और जब उन्होंने बोली ना तो मैं उसको यूं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये कौन सी अंग्रेजी है जो मुझे नहीं आती। क्योंकि वो आ जाते हैं स्लैंग पे और वो टक 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 और वो बोलते भी इतनी तेजी कि दैट्स देयर लैंग्वेज। अगर मैं भी उर्दू जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उस बंदे को बोलूं जिसने सीखी है, उसको कुछ समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल यही वजह है कि वजह जो हलीमा ने बताया कुछ और भी है कि यहाँ पर उस तरह नहीं सिखाई। नंबर 1 वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। नंबर 2, आप जब किसी मुल्क में जा रहे होते हैं तो यू स्टार्ट वॉचिंग द मूवीज़, गाने सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं भी बहुत सुनती हूँ उसमें गाने, तो आपको वर्ड समझ में आने शुरू होते हैं। नंबर 3, जर्मन ऐसी कॉम है, स्पेशली जर्मनी की बात करें, जो पहाड़ी लैंग्वेज आप कह रहे थे वो ऑस्ट्रिया में होती है। या ईस्ट एंड वेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्लास अपने आप को समझती है, तो बहुत जमा के बहुत आहिस्ता बोल रहे होते हैं और बहुत मैनर से बोल रहे होते हैं। ईस्ट जो है वो थोड़ी सी ओपन से है। हाँ एग्जैक्टली। तो थिंग इज दैट कि जैसा देश वैसा बेस होता है। शुरू में मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब 2 जर्मन सबरेन में ट्रेन में या बस में बात कर रहे होते तो उसमें से 4 लफ्ज़ मैं पिक कर लेती हूँ। जब मैं 4 लफ्ज़ पिक कर लेती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो दे आर व्हाट दे आर टॉकिंग। इवन आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज, जो हमारे ऑफिस में भी हमारी कंपनी में भी है, मैंने अपने टीचर से सीखा है। तो वही चीज़ सिखा रहे होते हैं सर, क्योंकि सर की जब मैंने अपने टीचर से सीखा, उन्होंने C2 पास किया हुआ है। अब C2 पास करके वो म्यूनिक में जाते हैं, उनको बाकायदा एम्बेसी भेजती है, गोएथे इंस्टीट्यूट भेजते हैं, बाकायदा वो जाके वो म्यूनिक में जाके क्लासेस दे रहे होते हैं। तो जब वो जर्मनी में जाके क्लास देते हैं और हमें जब टीच करते हैं, हमें लेसन देते हैं, तो वो वही लैंग्वेज बोलते हैं। कोर्स की थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा पैटर्न भी हम कॉलर भी लेते हैं साथ साथ, लेकिन ये पैटर्न आप बताएं C1, C2,
A2 C3 ये कोई लेवल है, 6 लेवल है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये आपके 6-7 लेवल्स होते हैं जो आपने 8 वीक्स के लर्न करने होते हैं। तो आई पास माय A1। बहुत ज़्यादा नो ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30,000 होती है पाकिस्तान। ठीक है, और इस तरह के जो मैंने लैंग्वेज की बात की थी उसमें मैं ये भी कहना चाह रही थी कि वहाँ पे जो कंपनीज होती हैं फिर आपको जॉब से निकाल देती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें कि वो कहते हैं कि आपको जितनी देर में हम बात समझाएंगे ना तो उतनी देर में हम खुद कर लेंगे ये काम, क्योंकि उस बंदे को बात समझ नहीं आ रही थी। हालांकि वो ये कह रही है जिनको जर्मन नहीं आती, नहीं उनको वो समझ ही नहीं आ रही ना, उनकी लैंग्वेज जो है वो समझ ही नहीं आ रही, उनकी प्रोनाउंसिएशन समझ ही नहीं आ रही। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप नहीं ला रही, आप वेरी टची अबाउट जर्मन्स, क्योंकि मैं रहती हूं, मैं खुद मैं हुमायूं के साथ अक्सर बात करती हूँ। मेरी खाला है जिनको जर्मनी गए हुए भी 50 साल हो गए हैं, अब उनकी 3rd जनरेशन वहीं पे है। वो मतलब हमारे से ज़्यादा वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो वहाँ पे जर्मन भी हैं। ये मैं उनकी बात, उनका किस्सा नहीं बता रही, ये मैं एक और किस्सा बता रही हूँ कि वो बेचारे फिर वापस आ गए, हालांकि उनको नेशनैलिटी भी मिल गई थी, उनका बच्चा भी वहाँ पे पैदा हो गया था, वो फिर वापस आ गए। अब उन्होंने 2-3 और कोर्सेज यहाँ से किए, अब वो दोबारा से गए, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर नहीं गए कि अब मैं दोबारा से जाऊँगा, दोबारा से वहाँ पे जॉब अप्लाई करूँगा, फिर जब थोड़ा सेटल हो जाऊँगा तो अपनी फैमिली को बुलाऊंगा। लोगों के साथ ये मसले हैं ग्राउंड लेवल पे। मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ। अगर आपकी लैंग्वेज की फर्स्ट बेसिस पे पर आपको आती है इरम, तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से कहेंगे भाई तो तुझे जितनी देर में हम चीज समझाते हैं, वी विल हायर समबडी हु नोज द लैंग्वेज इन अ गुड वे। बेसिकली हम लोगों के घर में एक हाउस मैं अच्छा तारिक से एक बात करते हैं, फिर मैं एक किस्सा सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम तारिक। फिर हम फड्डा डालते हैं इरम से। फड्डा लीमा आपकी हुमायूं भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मेरे भाई की जान, कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू। मैंने फाइनली आपको लाइव देखना था तो देख लिया, वरना रिकॉर्ड शो देखता था। ओहो अच्छा चलो यार, चले अच्छी बात है, अब लाइव की तरफ। हालांकि जो हम YouTube वाला उसमें फिल्टर लगवाते हैं कि थोड़े और गोरे लगे हम। अच्छा एक तो इफ यू अलाउ मी, मैं आपको 2-3 जो जुमले आपके लिए, आपके शो के लिए और चैनल के लिए कहना चाहूंगा। मैं कहता हूँ कहो, हम तो ये ज्यादा सुनने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा एक तो ये है कि मैं मतलब अक्सर वो टीवी तो मैं बहुत कम देखता हूँ, सिर्फ स्पोर्ट्स देखता हूँ, लेकिन ये कि कभी कभार जो दूसरे चैनल पे जो मॉर्निंग शोज वगैरह आ रहे होते थे वो देते थे स्टीरियोटाइप, और वो शादी और वो गेस्ट को बुला के अजीबोगरीब सवालात। बट अब ये जो मैंने आपका शो देखा है, मतलब एक दिन मैंने ऐसे ही चैनल घुमाते हुए देखा और उसके बाद नाउ आई एम रेगुलर वॉचर या व्यूअर। कब आ रहा है शेर कब आ रहा है? मैं शेर के लिए बैठा हूँ, मैंने गडवी भी उठा लिया है। शेर सुनाओ। नहीं शेर नहीं, मैंने कहा था एक तो जुमले, उन्होंने कहा था तारीफ के 1-2 जुमले मैं शायर तो आपके नहीं जरूर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद करके बेचारे कह रहे हैं ना, मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा शेर की बजाय ना। हाँ देखें जो हलीमा आपकी है माशाल्लाह, शी स्पीक्स सो वेल, बड़े अच्छे अंदाज से उनका बोलना, और मतलब हर बात बड़े अच्छे अंदाज से बोलती हैं। बहुत शुक्रिया। और आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि वक्त पे जवाब आ जाना। तो ये जो एक मिथ थी ना कि टीवी पे सिर्फ जो है वो अच्छे चेहरों वाले ही आ सकते हैं, तो लेकिन अभी आपको देख के लगता है कि टैलेंटेड लोग भी आ सकते हैं। आपका वोट क्यों हो गए? ये हुमायूं को समझ नहीं आई कि आपने उसकी तारीफ। दोनों को कहा उन्होंने, हम दोनों कहा कि टैलेंटेड लोग ऐसे। नहीं इट वाज जस्ट अ जोक, और माशाल्लाह यू बोथ आर वेरी वेल, और बहुत खुशी होती है मुझे तो, बल्कि ये लगता है कि जैसे हमारे घर का एक हिस्सा है। वे तारिक तू मैंने अपनी तस्वीर ते देख के जो लग मैं देखा तू कितना सोहना है आपे है, मैनू तो कह रहा है मैनू दस तू केड़ा ब्रैड पिट है मेरा भरा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने खूबसूरत बनाया, कश्मीरी जैसी नाक है मेरी, नशीली मेरी आंखें, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो लगता है सेब फूटा मेरे। बहुत शुक्रिया तारिक कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली कॉल किसकी है? हसन है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हसन। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। लड़ाई कर मैं बताती हूँ, मैं इस पॉइंट को मैं प्रूव करती हूँ। हमारे घर एक दफ़ा एक मुलाजिम आए
اور ان کو جو ہے یہ نہیں پتا تھا کہ پلیٹ کو پلیٹ کہتے ہیں اور گلاس کو گلاس کہتے ہیں. اب وہ ہاں ان کو یہ نہیں پتا تھا. تو چمچہ, کانٹا, فوک, یہ چیزیں بہت دور کی بات ہیں. تو میری امی جو ہیں وہ انہوں نے کچھ ایسے بات اس کو کہہ دیا کہ خدا کا واسطہ ہے میری جان چھڑ دے, تو یہاں سے چلا جا, جتنی دیر میں تجھے کام سمجھاتی ہوں اتنی دیر میں 10 کام کر لوں گی. تو یہ وہ بات ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک بندے کو اتنا لینگویج بیریئر ہے کہ اس کو آپ کی کہیں بھی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو وہ آپ یہی کہو گے اس کو کہ آپ کہیں اور جاب کر لیں یا آپ کچھ اور کر لیں, کیونکہ آپ تو جتنی ٹائم لگا رہے ہیں اتنے دیر میں تو 10 آپ جواب دے دیں, پھر ہم کالر لیتے ہیں. آپ اجازت ہے؟ ضرور ضرور. اوکے جی, تھینک یو. دیکھیں میں بہت قریبی جرمنس کے ساتھ رہی ہوں, فیملی میں بھی اور جابس میں بھی اور یونیورسٹیز میں بھی اور کمپنیز میں بھی. ٹھیک ہے, اس کی ایک چھوٹی سی مثال اب میں آپ کو جینوئن دوں گی. یہاں سے ماسٹرز کے لیے ایک اسٹوڈنٹ گیا, الیکٹریکل انجینئر, دبئی میں اس کی اپنی جاب تھی اور اس نے کافی ایج میں, یا ایج بیریئر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ اتنا 30+ ہو چکا ہے, اب اس کو یہ تھا کہ میں تو جا تو رہا ہوں اور میری تعلیم بھی انگلش میں ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, میں کیا کروں گا. میں نے کہا جاؤ, اب تو تمہیں جانے کا شوق ہے, تمہیں ویزا بھی مل گیا, اب جاؤ یہاں سے. وہ گیا جا کے اس نے جرمن, اور صرف 3 مہینے کے اندر مجھے فیس بک میں بولا کانگریچولیشنس. میں نے کہا واٹ ہیپن ٹو یو؟ کہتا آئی گاٹ دا جاب. میں نے کبھی تو ڈیورنگ کو 20 آورس الاؤ ہوتے ہیں, آپ لوگ جاب آپ کرتے ہیں اور جابس کرتے ہیں. کہتا میم آئی گاٹ دی کمپنی جاب. میں نے ہاؤ؟ تو کہتے میں پروجیکٹ مینیجر تھا دبئی میں انجینئرنگ کے لحاظ سے, انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. میں نے تو چلتے پھرتے پروفائلس میں, آج کل وہ زوم میٹنگ میں چل رہا ہے نا, اسی طرح آپ کے انٹرویو, انہوں نے مجھے پاس کر دیا. انٹرویو انہوں نے پورا انگلش میں لیا. اب وہ جا کے اس نے جوائننگ دی, سارا کچھ کیا, اینڈ بلیو می اس کو 6,000 یورو کی جاب ملی ہے. 6,000 یورو از اے بگ منی پر منتھ. بیٹھ جاؤ, مسئلہ تو نہیں, میں باجی کے ساتھ کنیکشن کر لوں. باجی تو بہت امیزی لگتی ہے. سو دی تھنگ از دیٹ, اب میں نے کہا تو پرابلم کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جرمن بولنی ہے اور B2 لیول تک کی بولنی ہے, A1 بھی نہیں پاس کر رہا. ابھی تو کلاس شروع ہوئی ہیں یونیورسٹی میں, فری کلاسز ہوتی ہیں وہاں, سب سے بڑی بات فری کلاسز. میں نے کہا تو پھر پڑھو, میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی تھی 1 سال سے پڑھو, پاکستان میں پڑھو, زوم پہ پڑھ لو, دبئی میں پڑھ لو. تم نے سنی نہیں نا میری بات, میں تم سے یہی کہہ رہی تھی. تو کہ جاب میں چاہیے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پھر کیا کروں؟ میں نے کہا دفعہ کرو, اب نہیں جانی تمہیں جاب, اب تمہاری 6,000 یورو اٹس اے بگ منی ہے, تو میں نہیں ہوگی. تو پھر 2 ہفتے بعد کہتے ہیں میم کانگریچولیشنس. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتے وہ کسی صورت مجھے نہیں چھوڑ رہے جرمنس, اور کہہ رہے ہیں یہ لو ہم نے کلاس میں تمہاری لگا دی ہے B2 لیول کی بزنس کی, جو بزنس لینگویج ہوتی ہے, جو آپ نے اپنے جونیئرس کو بتانا ہے کہ یہ ہے, ہم نے تمہیں ہیڈ ہی رکھنا ہے. کیونکہ لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے پھر ایک اور میسج, کنگریچولیشنس کمپنی نے کہا ہے تو CEO بنے گا, پھر کنگریچولیشنس دیکھا جرمنی کا پریزیڈنٹ تو ہے بھائی. نہیں دیکھیں, تعلیم اس نے پاکستان سے لی, انجینئر پاکستان سے گیا, دبئی میں گیا, دبئی میں اس نے اپنی کیا کہتے ہیں اپنے ایکسپیرینس گین کیا. ایکسپیرینس گین کرتے ہوئے اس نے ہماری کمپنی کو ٹچ کیا, اینڈ دین ہی گاٹ دی ویری گڈ یونیورسٹی, ویری گڈ یونیورسٹی, فری. آپ کو پتہ ہے اس کی کیا فیس تھی؟ خالی 150 یورو, جو پاکستانی آپ کنورٹ کر لیں تو 20-30 ہزار روپے ہوتے ہیں, جتنے بھی ہوتے ہیں. بڑی کم ہے یہ تو ماجد بھائی بھی جا سکتے ہیں, ہر کوئی جا سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمپنی نے اس بندے کی اسکل کو دیکھا, اس کے ایکسپیرینس کو دیکھا, اس کی وہ پاکستانی تعلیم کو دیکھا, جس کو ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی پاکستان یہ پاکستان وہ, جو آپ نے مجھے شروع میں آپ نے بولا کہ پاکستان از دا بیسٹ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ براٹ اپ اس کی یہاں ہوئی, سارا اس کا پروجیکٹ مینجمنٹ ہوا اور کمپنی اس کو نہیں چھوڑی. ارم آپ کی کشتیوں پہ تو نہیں بھیجتی خدا کا واسطہ, یہ نا میں آپ سے کرواؤں, آپ مجھے کشتی میں بٹھا دیں, آپ کے صرف دبئی تک جائے گی, وہاں تو جہاز پہ کنٹینر جو ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے. میں برلن, ہمارے پاکستانی امبیسڈر ہیں ڈاکٹر فیصل, برلن ایمبیسی میں ہوتے ہیں, تو وہاں میں ان کی چائے کی دعوت پہ گئی تھی لاسٹ ایئر دسمبر میں, تو انہوں نے مجھے ڈنکی سکھایا. میں نے کہا واٹ از دس ڈنکی؟ چائے کی دعوت پہ برلن گئی. مجھے تو کوئی یقین مانو ساتھ کا بات نہیں بولا. کل آپ نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے میری بات تو سنے نا, میری بات تو سنے. تو انہوں نے ڈنکی بولا, میں آپ ڈنکی سے نہیں بلاتی. میں نے کہا واٹ از ڈنک, کیا ڈنک ڈوب جانا ہے؟ تو کہہ رہے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں پتا. تو کہتے ہیں کشتی ہے, کشتی کی. میں نے کہا نہیں, ہم جہاز کے راستے بلاتے ہیں, امیگریشن کے راستے بلاتے ہیں. ہیں. گڈ مارننگ زائدہ جی, کیا حال ہے؟ بہت ہی عجیب غریب سا لگ رہا ہے مجھے. اپنا آپ چائے پہ لوگ برلن بلا رہے ہیں, اور مجھے یہاں پہ پٹ رہا تھا کل, مجھے کوئی روٹی پہ بلا لے, کوئی دال ہی کھلا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ پتہ نہیں چلا میرا بیٹا آپ روٹی کے لیے پٹ رہے, میں اپنے گھر بلا لیتی میرا بیٹا. آپ بلا لیتی, میں نے انسٹاگرام پہ لگایا ہے, میں نے کہا موسم اتنا پیارا ہے, کوئی اللہ کا بندہ مجھے کہیں لے جائے. بہت پیارا, بہت میرا کشمیری بچہ ماشاءاللہ. بھی جو آپ ساتھ کہہ رہے تھے نا میری ناک, واقعی آپ کشمیری ہیں جیسے, بہت خوبصورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کال آپ لوگ پہلی کال کیا کرے اس کو یار. جی زائدہ جی. آج بیٹا میں صبح سے کال ملا رہی ہوں, میری تو انگلیاں تھک گئی ہیں, نہیں ملی کال. صدقے چلے جی, کوئی نہیں. حلیمہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے. کل میری حلیمہ سے بات ہوئی تھی شام والے پروگرام. ہاں شام والے پروگرام میں بھی انہوں نے کال. کیوٹی.
सदके तो मैंने उनसे बात करनी थी, आपकी जो पहली गेस्ट आई हुई थी, तो चलो खैर है, कोई बात नहीं है, मैंने कहा आपसे बात कर लूं, मेरे बच्चे बहुत इरम से भी कर ले, इरम कुछ खाती तो नहीं बंदे, इरम बंदे जर्मनी भेजती है, इरम बहुत अमीर है, जायदा जी कर ले, तब दोस्ती डाल लें। अस्सलाम वालेकुम इरम, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत थैंक यू जी, प्यारी। थैंक यू। अच्छा जायदा आंटी, मुझे पता नहीं क्यों आप वो वाली आंटी लगती है जो शादियों पे ना लड़कियों को ढूंढ के कहती है माशाल्लाह बहुत प्यारी, बेटा रिश्ता हुआ है तेरा? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। क्यों तो बिल्कुल भी, क्यों मैं तो आप ऐसी औरतों के जायदा आंटी तो ऐसे रिश्ते बड़े फिट होते हैं, मुझे ऐसी अम्मियां बड़ी अच्छी लगती है शादी में प्यारी प्यारी लड़कियों को पकड़ के उनके रिश्ते पूछती हैं। तो अच्छा जो चले, नॉर्मली मैं क्यों आपके लिए से रिश्ता ढूंढने निकलूंगी आज। जायदा आंटी निकल लो आप, मैं कहता हूँ कोई एक इसके अच्छा लिए रिश्ता। रिश्ता ठीक है अभी मैंने चले, बोला था। ख्याल रखिए। कोई सवाल है? वो खरोटों वाली बात कर रहे थे कि वो जो हम भी मुजफ्फराबाद, मैं भी मुजफ्फराबाद की कश्मीर हूँ, माशाल्लाह रियल कश्मीरी हैं हम तो। अच्छा अच्छा वो बचपन में हम भी वो खरोटों के दरख्तों पे चढ़ जाना, तो उनके वो पत्तों से दांत साफ करना, छिलकों से, और मैंने कहा मैं भी बता दूं मैं अभी आई हूँ तो कश्मीर से। भाइयों को, मैं भी कश्मीरी हूँ, हाँ तो तो बस आप भी कश्मीरी। माजिद साहब शुक्र करें अखरोट के पत्तों से होता है। माजिद साहब के पास 1 रुपया नहीं टूथपेस्ट खरीदने का भी, गोटों का इलाज मुफ्त कराना चाह रहे हैं वो। चले हम आपसे बात करते, थैंक यू सो वेरी मच, ख्याल रखें जी। रुबेल है, रुबेल नहीं रोहेल, रोहेल। रुबेल उधर पीछे बैठी हुई बेचारी। रुहेल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत आपका प्रोग्राम, आप लोग बहुत खूबसूरत। और हमायूं भाई पूछ रहे थे मैं कैसा हूँ। हमायूं भाई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना फरमाया कि मैं जो भी कुन फयकुन, वो सोचता हो जाता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने हाथ से बनाया। सुभान कुरान अल्लाह, पाक का तर्जुमा अल्लाह ने पढ़ा है, सुभान अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ा। उसमें जब ये अल्फाज है मैं परेशान हो गया कि अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है, कि इंसान को मैंने खुद तहलीक किया, अपने हाथ से, सॉरी अपने हाथ से तहलीक किया अल्लाह ने, तो आप तो फिर खूबसूरत होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल क्या ठीक बात की कह रहे है रोहेल, माशाल्लाह, आपने और अल्लाह ने बहुत बड़ा खूबसूरत फुर्सत बात से बनाया है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अभी दूसरा जो मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, लाहौर जॉब करता हूँ, जी। अच्छा तो मैं अमूमन आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा अब ये कल आप ये बात कर रहे थे हड़प्पा की, कि आप कह रहे थे कि मेरा किस तरह वहाँ से रिलेशन निकला हड़प्पा में। जी जी। तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं ना। हाँ जी भाई। तो देखें उनके पास वो हड़प्पा से निकली हुई है, उनकी खुदाइयों में निकली हुई। तो आप कह रहे मैं टैक्स लगे खुदाइयों में निकला था, बरामद हुआ था। Basically मैं फैसलाबाद क्या पता चल गया मुझे आपके जोक से। रहा नहीं जाता ना हमसे। मैं हाँ 2 दिन ना, से मजबूर है, आप लोग के पेटों में मरोड़ पड़ी रहती है अगर आप लोग कुछ जुगत ना मार लें तब तक। पर गुड यार, आई लाइक इट, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। सलामत रहो, खुश रहो रोहेल भाई। सवाल नहीं हो सकता, फैसलाबाद के लोगों के पास सवाल नहीं होता। हुमैरा कहाँ से? हेलो, फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह। आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है। थैंक यू। मैं इस एज में हूँ कि मेरे बच्चे आप लोगों से भी बड़े हैं लेकिन ये जॉली सी तबीयत आप लोगों की माशाल्लाह देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा कोई सवाल नहीं है, कोई नहीं है। हुमैरा, मैंने वैसे हुमैरा आप लोगों जी, को देख के सिर्फ कॉल की है। हुमैरा जी बात सुने, जी जी। आपको गाना गाना आता है? कोई गुनगुनाते, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आज गाना सुनने का। नहीं बेटा, इस उम्र में मैं कौन सा गाना गाऊंगी? क्यों, उम्र का क्या ताल्लुक है? गाने माजिद से। भाई अभी भी इस उम्र में गाना गाते हैं, खुदा के मैं सही बता रहा हूँ, गाते हैं वो आज इस उम्र में। मैंने सिर्फ आप लोगों को देख के कॉल की है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आप लोगों से Thank बात you. करके अच्छा लग रहा है। बहुत सलामत शुक्रिया, बहुत हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के आपको बाद जब जर्मनी वापस लेके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर जर्मनी हमसे बातें चलेंगे, सब। करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। कहीं मत जाइए साथ। वेलकम इन एकोसो वस्ता गैशे। कुछ भी बोल दो, कौन सा किसी को समझ नहीं मैंने जर्मनी वी गेट्स वी गेस विकेस
समथिंग गुड। ये हमें जर्मन सीखी है अभी इरम से। अच्छा, मैं अपने कज़न से 2-3 दफ़ा ये मुज़ाहिरा कर चुकी हूँ सीखने का कुछ वर्ड्स, और उसके बाद जब वो जाते हैं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैंने काउंटिंग सीखी थी, आइन दोइन शॉइन ही याद है मुझे, 1 2 3। वी गेस जी गुड। लेकिन अगर वो बोलेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो जी गुड बोल रहे हैं। ये मैं भी लिख के आपको देने के लिए तैयार। अच्छा, अब ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग हमेशा जब यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं तो हम तरह रैंक यूनिवर्सिटी करते हैं। तो जर्मनी की बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो मुझे मालूम है कि वो रैंक्ड है, टॉप रैंकिंग में, जैसे QS रैंकिंग है, उसमें हायर एजुकेशन की जो है टाइम्स की है, मेरे ख्याल में टाइम्स में ही QS भी आता है। तो जो रैंकिंग है उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ भी आप डील करती हैं, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है? देखिए, पहली बात, सेकेंडली एक और सवाल साथ में, अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, MBA किया हुआ है, पर मैं आगे जाके कोर्स तब्दील करके कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, क्या वो भी किया जा सकता है? बिल्कुल। आपके 2 सवाल हैं। पहले मैं रैंकिंग में आती हूँ। जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग है। एक कंट्री है जिसने 300 यूनिवर्सिटीज़ या 400 यूनिवर्सिटीज़ एक फ्री एजुकेशन रखी है, तो उन्होंने अपने आप को रैंकिंग से बाहर निकाल दिया। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज़ जो बड़े वीटो पावर्स हैं, और ये QS एंड टाइम्स, आई डोंट वांट टू टेक द नेम इन शो, जो भी वीटो पावर्स हैं वो अपने आप को रखते हैं क्योंकि दे हैवी अमाउंट ऑफ द फीसेस हैं, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ है। तो अगर आपके मनी ले रहे हैं, फंड ज़्यादा ले रहे हैं, और QS रैंकिंग में अपने आप को रख रहे हैं और फ्री एजुकेशन को ऊपर लेकर आ जाएंगे, तो हु विल गो टू दैट बिग अमाउंट मनी? वो कौन यूनिवर्सिटी जाएगा? तो हर एक तो फ्री यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश करेगा ना। तो जर्मनी ने अपनी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग किया हुआ है। अब वो रैंकिंग में आ रहा है, वो QS की मर्जी है, टाइम्स की मर्जी है, या XYZ की मर्जी है कि वो उसको रैंकिंग में लेकर आ रहा है। अगर मैं एक मिसाल लेती हूँ कि सबको पता है कि अल्लामा इकबाल ने जो PhD अपनी डॉक्टरेट की है वो जर्मनी से की है, हाइडलबर्ग में। मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता है जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो कि वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, डॉक्टरेट वहाँ से किए हुए हैं, अपने सब्जेक्ट उर्दू को पढ़ा हुआ है, और आज भी उनका इकबाल स्ट्रासे है, जो मैंने घर उनका जाके देखा है, बड़ा प्रिजर्व किया हुआ है, और स्ट्रासे मीन स्ट्रीट है। तो आप ही खुद सोचें कि यस एग्जैक्टली, आप खुद सोचें कि हमारे फाउंडर्स और हमारे वो ड्रीम लोग जो उन्होंने हमारे लिए ड्रीम देखा पाकिस्तान का, वो लोग उस मुल्क से पढ़कर आए, तो वो यूनिवर्सिटी को तो टॉप नंबर 1 में होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड से भी ऊपर होना चाहिए। तो जो वीटो पावर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, उन लोगों ने अपनी पावर करी हुई, अपना सब कुछ किया हुआ है। 300 यूनिवर्सिटीज़ को नहीं लाते। मैंने खुद देखी है, एक यूनिवर्सिटी की उम्र 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार साल पुरानी है। उनके रिसर्च, उनके नोबेल प्राइजेस, उनके इन्वेंशंस, MP3, यानी एक चीज़ जो है। आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी है कि हमारा प्रोडक्शन रूम पूरा कह रहा है सब जर्मनी है, तो सब बैग पैक करना शुरू हो गए। शुक्रिया, बहुत सही बच्चे घेर लेती होंगी। अच्छा, जो दूसरा सवाल हमारी ने पूछा था वो भी बहुत अच्छा था कि कोई अगर जाके सब्जेक्ट चेंज करना चाहे तो ये क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अब जैसे आप हैं, मैं हलीमा हलीमा को जाना है, इन्होंने अपना पढ़ा हुआ है MBA, यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। अब वो जाना चाह रही हैं कि मैं IT मैनेजमेंट में चली जाऊँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो डेटा साइंस और AI का बहुत ज़्यादा जोर आ चुका है, और ये सब होना भी चाहिए। सो क्या है कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए, जब आप पाकिस्तान से जा रही हो, आपके पास 2-3 महीने होते हैं इमिग्रेशन और ये सारा वीज़ा इसमें सारा, तो ज़रूरी मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूँगी कि जो है ना, आपने IT के कोर्सेज कर लो, अमेज़ॉन का कर लो, या IT डेटा साइंस कर लो, AI कर लो, एम्बेडेड कर लो, XYZ, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं या जो भी आप कर सकते हो, आपको जो आपको डाइजेस्ट हो सकते हैं, वो आप यहाँ पाकिस्तान से करके जाएं। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं प्रोफेसर को कि मैं IT मैनेजमेंट में क्यों जा रही हूँ, तो यू हैव द लमसम, आपके पास एक बोलने की डेटा होता है कि जी मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, मैंने इस इदारे में और लाइफ में जो है मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने यहाँ बैठ के बैक एंड में मैंने ये काम सॉफ्टवेयर का काम किया हुआ है, तो आपका ये भी CV में आ जाता है। आई थिंक शी वॉचेस अ शो वेरी कीनली। उन्होंने मेरे ख्याल में और लाइफ जो कहा है ना, लोग और कहते होते हैं, पर आई थिंक बड़े कीनली देखते हैं। हलीमा का नाम भूल गई थी। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं इससे पहले हलीमा आपसे पूछे, आप क्या PhD के लिए भी हेल्प करती हैं? कोई PhD इससे होता है इसमें स्टाइपेंड मिलता है ना, और ये खाली जर्मनी में नहीं होगा, पर पूरी दुनिया भर में अगर आप PhD के लिए जाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं रिसर्च के। सो डू यू हेल्प स्टूडेंट्स फॉर PhD? PhD में हेल्प ही करने होता है, क्योंकि वो सारा जो अपना वो क्वेश्चन आंसर्स की जो उसने फेस करना होता है, लोगों को, प्रोफेसर्स को फेस करना होता है, वो उसका सारा काम खुद ही होता है। तो आई कैन जस्ट हेल्प देम कि ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्सेज हैं, ये आपको लैंग्वेज आएगा, ये आपका IELTS होना चाहिए, इतनी आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रोफेसर से, ये HEC से आपने किस तरह की सारा कुछ करना है। जो पाकिस्तान से जो सारा कुछ है वो मैं गाइडलाइन कर देती हूँ, लेकिन जो बैचलर्स एंड मास्टर्स है उसका केस में A to लेके Z तक, आपको पता है कि कंसल्टेंट जो डिफरेंट कंसल्टेंट होते हैं उनका काम ही होता है, आपने रैंडमली देखा भी होगा कि वो एडमिशन कराया, वीज़ा आ गया, टाटा बाय बाय, तस्वीरें, हमारा काम खत्म हो गया। मैं इतना करती हूँ कि दम तक उनके साथ है। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली प्री डिपार्चर गए, वो उनकी फ़्लाइट है प्री डिपार्चर, नाउ दे आर इन द कॉल, क्योंकि उनको पता है मैम जागी हुई है, रात को भी जागी हुई है। मैम हम वो दोहा में पहुंच गए, अब क्या करना है, गेट ए में जाओ, इसमें जाओ, क्योंकि मैं इतनी जा चुकी हूँ तो एक्सपीरियंस हो चुका। अच्छा मैं यूँ जाऊँ, यूँ करो, कहीं नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, गाड़ी ना देखना, मेकअप ना देखना, ये चिप्स ना लेना, सीधा अपने गेट पे जाओ, कहता है कि तुम भटको नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं। फिर वो उतर गए फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। मैं तो भटकना चाहता, मैं भटकूंगा, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, क्योंकि दुबई का तो एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि माशाल्लाह आप उसमें भटक गए तो फिर आपको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में पहुंच गए, मैम अब हमने कहाँ है, मैंने कहा फ्लुक हाफन में हो, तो कहता कि कौन से हाफन में, मैंने कहा तो जर्मन सीख लो, फ्लुक हाफन मीन्स के एयरपोर्ट में हो। अब तुमने ऑफिसर से इस तरह बात करनी है, नॉन यूरोपियन में जाना, यूरोपियन में ना खड़े होना, फिर आगे आपने लेना है, आपके पास कॉइन होना चाहिए ताकि आप ट्रॉली खोल के ट्रॉली में जाएं, सारा कुछ उनको मैं हिदायत दे रही हूँ। अच्छा ठीक है इरम, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कन्फ्यूजन का। पाकिस्तान के आधी से ज़्यादा आवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर एक ऐसा बच्चा है जिसे अभी पता ही नहीं है, वो कह रहा है मैंने बाहर जाना है, बस किसी भी तरह मैं बाहर चला जाऊँ, ठीक है, करना कराना मैंने कुछ नहीं है, ना मैं कुछ सोच के आया हूँ कि मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, अपना सब्जेक्ट चेंज करूँ या इसी में करूँ, और वो आपके पास आ जाता है कि बस मुझे बाहर भिजवा दो किसी भी तरह, तो आप क्या उसको ये हेल्प करती हैं कि तुम ये वाला करियर परसू करो, तुम इसमें एडमिशन ले लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या वो प्रोसीजर जो है हर बंदे ने अपना खुद करके आना है? करियर काउंसलिंग, दैट्स वाई मैंने अपना लिखा था कि करियर काउंसलर, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ 15 ईयर्स ऑफ मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने करियर काउंसलिंग, जैसे इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, ब्रिटिश काउंसिल है, जो भी हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मैं बनी तो पाकिस्तान से ही हूँ ना, तो मैंने करियर काउंसलिंग सीखी है अपनी यूनिवर्सिटी में काम करके भी। जब तक आप करियर काउंसलिंग एक स्टूडेंट को नहीं करेंगे, उसको रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो कैसे आप बाहर भेज सकते हैं? आई एम नॉट द पर्सन टू थ्रो ओवर देयर, आई एम द पर्सन कि बी अ पाकिस्तानी एंड हैव अ पाकिस्तानी एंड विल बी द पाकिस्तानी। प्लीज़ पोर्ट्रे करें, मैंने अपने मुल्क की पोर्ट्रे किया है। मैं अभी ICF बर्लिन में थी लास्ट नवंबर में, आई एम द ओनली वन फीमेल all over the world, 60,000 people over there and one female of Pakistani। अब देखिए कितनी, मैं ये फखर से नहीं बता रही बल्कि मुझे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्म आ रही है आपको? इसलिए कि बहुत सारे होने चाहिए थे, बहुत सारी पाकिस्तानी फीमेल्स होनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब मेरा दिल है कि जितने लोग अरब ममालिक से आई हुई हैं, बेशक वो हिजाब में, लेकिन वो 10-10, 20-20 लोग आए हुए एक एक मुल्क से, और हमारे सिर्फ एक, यानी कि अप्रोच ही नहीं करते। मुझे लगा कुछ शर्म आ रही है, आपने कुछ जाके की कोई? नहीं, मैंने तो इतनी मीटिंग्स की है और इस तरह बात की है, कॉन्फिडेंटली हो के अपने मुल्क को किया है। अब वो कहेंगे जी लुक एट द नॉर्वे, लुक एट द दिस वन, आप बात करिए, मुझे लगा एक दो को आप चपेड़े भी करा दी होंगी। मुझे तो दिल चाह रहा था, एंड मैंने क्या बोला, मैंने कहा लुक एट द आज़ाद कश्मीर, लुक एट द हुंजा, लुक एट द गिलगित, फिर कहते हैं जी लुक एट द, वो मुझे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी सारा दा के साथ का है कि दा हुंजा, ठीक है, गुड किया एग्जैक्टली, मैंने अपने मोबाइल से दिखाया। अब मैं एक डायरेक्टर पब्लिक यूनिवर्सिटी की, गुड किया है ये तो आपने। या आई एम ऑन द वे टू द बेल्जियम, मैं बेल्जियम में थी और मिकलिन से हमें ब्रसेल्स जाना था, तो वो कहती कैप्चर लो कितना खूबसूरत है मोटरवे की, मैंने कहा लुक दिस मोटरवे, लाहौर की, साड़ा अपना लाहौर भी आप मोटरवे, कितनी मियां साहब बना के गए, मियां साहब को इंट्रोड्यूस करना था आपने, उनको कहना था ये मियां साहब हमारे अपने हैं, आप लेके आए कहीं से मियां साहब। अच्छा दूसरा एक बहुत ज्यादा मजे की बात मैं आपसे जल्दी से पूछनी है इससे पहले कि शो खत्म हो। एक बच्चे ने जाना है बाहर, कुछ तो पैसे देने होंगे, हमें है कि हम साथ अर्न भी करें ताकि घर में कुछ भेज सकें। सो मुझे आप साथ साथ बताएं, ऐसा जो बच्चा वहां पर जा रहा है, साथ में तालीम भी ले रहा है वो, और साथ में क्या वहां पर जॉब 20 आवर्स की क्या और जॉब्स मिल जाती है, इजी है, और वो क्या सिस्टम है, कैसे सर्वाइव करेगा? पाकिस्तान से उनको लिविंग कॉस्ट लेके जाना है 12 महीने का, तो जाहिर है कि आप 960 यूरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 हो जाएगा। और वो लॉक अकाउंट भी बनाना है, लॉक अकाउंट 11,300 यूरोस का, वो लाजमी है। 5 मरले की ज़मीन बेच दें, गाड़ी बेच दें, कुछ भी बेच दें, बेचना पड़ेगा। तो लिविंग, क्योंकि देखिए ना, एक मुल्क जो है वो आपको फ्री तालीम दे रहा है, तो वो लिविंग क्यों देगा आपको? तो लिविंग तो आपको लेके जाना है ना। और बहुत अच्छी बात है कि 1 साल का वो अगर लिविंग लेके जा रहे हैं तो माँ बाप को ये तो नहीं है कि भूखे मर रहे हैं। अब और जॉब्स की तरफ आ जाते हैं, तो और जॉब्स हर तरह की है, एक स्किल आ गई, एक लैंग्वेज आ गई जैसे आपने बोला, और साथ में जो है आपकी जो है जान पहचान भी होती है कि आप जैसे रिलेटिव्स अब ये जाएंगी तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब बहन ने लगा दी, इधर लगा दी, तो रेफरेंस भी आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। रिलेटिव्स बहुत रिच भी हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं इंशाल्लाह होने वाला अगर मैं जाऊँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मेरा जाने का कोई बेटी है, हाँ उनकी बेटी है, बहुत खूबसूरत, नहीं शादी की लायक है, ठीक है। थैंक यू सो मच इरम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को समझ भी आई होंगी कि यहाँ से जाने से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर हो के जाएं, तो आगे आपके लिए वेज जो है वो खुलती रहती हैं। थैंक यू सो मच, आइंदा भी आपको बुलाएंगे कभी, और अगली बार चाय पे जाएं, हमें चाय का बहुत शौक है, दोनों को बर्लिन ले जाएं, हमें अपने बैग में डाल के नेक्स्ट ईयर भी रेडी, फरवरी के मंथ में इंशाल्लाह ताला हम रेडी। पीए शो हम वहाँ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे
करे हम इतने अमीर हो जाए। थैंक यू हमारी सो वास्ती बन जाओ, टर्की जैसे जगहों में जाके शो करें। बहुत शुक्रिया आप लोग का, इस तरह प्यार देते रहिए। आखिर में आज एक बात मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा, क्योंकि आई वांटेड टू से दिस, कि सर्दी आ गई है जनाब, अपने आप को कवर रखें, लिक्विड्स का ज़्यादा इंटेक भी लें, क्योंकि हम भूल जाते हैं लिक्विड्स का इंटेक लेने के लिए। गर्म चीज़ें खाएं पिएं सिर्फ गर्म चीज़ें, ठीक है। हम मुलाकात करेंगे कल आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।